that they were doing something which was anti-national or anti-human? Are there any police records? How do you determine and how do you find these girls? Secondly, Kerala is also reputed as one of the most religiously diverse states. So when you're doing something like this, how do you ensure that it's not leading to some sort of vigilantism? That was a good question. I'm sorry, I didn't get your name. Mohua from the Times of India. Okay, that is a good question, Mohua ji. So, if we have to talk about the 7,000 people that we have brought back, it's first of all not just women. It's both men and women whom we have brought back. And they were identified not through records, they were identified by their patterns of, they had been so radicalized or they were so brainwashed into a different ideology or state of mind due to a certain particular ideology, that their pattern of interactions with their family, pattern of interactions with their closed ones had changed so much that they had become averse to their own families. They wanted to leave their families, they wanted to disassociate from their friends and near and dear ones, and wanted to, they were inclined or sympathizing with the anti-national or anti-human trend, which is what the parents or their close relatives noticed, and that was when they intervened and they brought them to Asha Vidya Samajam, where we were able to debate with them based on, we were able to give them counseling, intellectual, ideological counseling, and bring them back. So, if you ask for records, 7,000 people, we have the data, but then there is no evidence otherwise, because these people who have come back or have been affected, they don't speak up about it, or their families don't want to reveal their identities because of the political scenario or because of the concern for the safety of their lives. People don't come out and speak about it. That's the reason there's no evidence. Like Nima Matthews' character depicts in the movie, and the policeman is asking for proof. Where is the proof? So this is why we don't have proof. People don't come up and talk about it. Does that? आज जब आपने ये जो एक्टिविटी रखी है, इनसे हमें इंट्रोड्यूस कराया है, आपने उन लोगों को सामने क्यों नहीं लाया या ला नहीं सकते या ला नहीं पाए हैं जो एक्चुअली ISIS और टेररिज्म का शिकार हो चुकी है? उसमें ऐसा है कि हम उन तक पहुंच नहीं सकते। जिस लड़की की कहानी शालिनी, वो अफगानिस्तान की जेल में है, और नीमा का टेस्टिमोनी हमने फिल्म के एंड में रखा है। गीतांजलि के माँ बाप का टेस्टिमोनियल भी हमने रखा है। लेकिन वो लड़कियां जो कहीं चली गई हैं, उन तक पहुंचना हमारी रीच के बाहर है। उनकी मैं एक पॉइंट ऐड करूं, हमारी उद्देश्य ये नहीं था कि कोई एक एग्जीबिशन करके लड़कियों को दिखाने की कोई इरादा नहीं था। यहाँ पे कुछ ह्यूमैनिटेरियन कहानी बोलने की कोशिश की। गीतांजलि की जो माँ बाप की, जो आपने फिल्म की एंड में देखे हैं, वो माँ बाप भी आना चाहते थे हमें सपोर्ट करने के लिए, लेकिन वो लोग ऐसे दूरी में रहते हैं, उनको इधर आने में 3 दिन लग जाएगा, क्योंकि नियरेस्ट शहर से भी वो लोग बहुत दूर रहते हैं। बात ये है, कितने लोग, हमने कहीं नहीं बोला कि 50,000 लड़की 70,000 लड़की आईसीस में चले गए। उसके लिए आज भी हम क्या बोलेंगे, अलग अलग दुनिया की जगह से पेपर भेज रहे हैं, प्रूफ। आज भी एक प्रूफ आया कि 42,000 लड़कियों को आईसीस ने इम्प्रेग्नेंट की है। आज आए हैं, मतलब पायनियर न्यूयॉर्क करके कोई मैगजीन से। सो बात ये नहीं है कि हमने कोई सेलिब्रेशन करना था, कोई शो एग्जीबिशन करना था, हमें 3 प्यारी बच्ची की कहानी बोलना था, और वो कहानी हमने बोले, और उस कहानी के थ्रू एक बहुत बड़ा इशू को हम टारगेट किया। ये श्रुति अगर अभी बोलना शुरू करेगी ना, रात हो जाएगा, आप सुन नहीं पाएंगे, सिर्फ आंसू बचेगा, आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगा, सब हो जाएगा। अगर श्रुति आपने कहानी बोले, अगर अखिला आपने कहानी बोले, चित्रा आपने कहानी बोले, तो बात यह है, मुझे दुख इस बात की हुई, हमारी देश में आज भी अगर गरीब को रोटी देने की बात करें ना, तो कोई सवाल उठाएगा, इसका कोई जरूर कोई उद्देश्य है कि गरीब को रोटी दे रहा है। पॉलिटिक्स ने बहुत बुरे कर दिए हमारे मन को।
इन तीनों बच्ची की जो हमारी फिल्में थी और यहाँ पे जो 26 लड़की बैठी है, इनकी दर्द किसी को नजर नहीं आते हैं, यानी कि हमारी पॉलिटिकल मंशा मन में आता है, which really pained us. Hi, this is Moga from the Times of Any particular community is being targeted? सर ये सेड अगेन एंड अगेन। मैं आपको एक सिंपल बात कहता हूं, शोले में गब्बर सिंह विलन है ना, तो सिंह कम्युनिटी के अगेंस्ट तो नहीं है रमेश सिप्पी साहब। हर फिल्म कुछ बुरे लोगों की बात करती है, और जब कोई भी फिल्म कुछ बुरे लोगों की बात करती है तो हम हर वक्त तो उसे किसी रिलीजन से नहीं जोड़ देते। सिंघम 2 में तो एक प्रीस्ट है विलन, तो क्या हिंदू सारे संत समाज को विलन कहने की कोशिश की गई है? बिल्कुल नहीं, वो एक कैरेक्टर है। हमारी फिल्म में कुछ कैरेक्टर हैं जो टेररिस्ट हैं, तो क्यों हम ये, जब हमने सिंघम 2 के वक्त या शोले के वक्त ऐसे सवाल नहीं उठाए कि आप तो देखिए हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, तो आज क्यों ये सवाल उठा रहे हैं? आज हम ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये फिल्म टेररिस्टों के अगेंस्ट है, तो लेट अस अपलॉड द फिल्म रादर देन ट्राइंग टू फाइंड समथिंग टू से कि समहाउ ये फिल्म किसी और एक इशारा कर रही है। क्योंकि हमने बनाते वक्त बहुत केयर रखी है कि हम किसी भी धर्म, किसी भी कम्युनिटी, किसी के भी अगेंस्ट नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उन परपेट्रेटर्स के अगेंस्ट हैं और उन्हीं को हमने दिखाया है। That is what this film is about. This film is about these girls. This film is about those 3 girls whose lives were destroyed. उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये उनके लिए है। बाकी सब हमारे अपने तरीके हैं ना एग्री करने के, and that's most welcome in democracy. Everybody has a right to disagree. But सवाल क्या है कि हम कभी ये सवाल नहीं उठाते ना। किसी और फिल्म में आपने ये सवाल उठाया, हर फिल्म का विलन किसी ना किसी रिलीजन से तो बिलोंग करता ही है। ऐसा तो कोई विलन नहीं होगा ना जो किसी रिलीजन से बिलोंग नहीं करता। आपने कितनी बार ये सवाल उठाए हैं, लेकिन आज ये सवाल क्यों उठा रहे हैं? हम लड़कियों की ओर क्यों नहीं देख रहे हैं? दैट इज अ बिगर क्वेश्चन जो हम सबको जवाब देना चाहिए। Hi, Vipul. Kiran Jain this side. Hi, from Delhi.